ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଭାବରୀ ବଳ। ଆଜି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ବ୍ଲକ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 1ର ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଅଛି। ସେମିତି ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ବୈଚାରିକ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜର, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର ଯୋଉଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଣିବା ୟୁନିଟ୍ 2ରେ, ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଦିଗ ରହିଛି ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଉ ଅହିଂସାକୁ ନେଇକିରି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା। ତା ସହିତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ଆମ ଭାରତର ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ସେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କର କଲେଜ ଏଜୁକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଆଇନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଇନ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଫିସିଆଲ ବାରିଷ୍ଟର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ 1891 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ, ସେଠି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ସେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ରହଣି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ସୁଖକର ନଥିଲା। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ରାସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ସ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜାତିଗତ ସ୍ତରରେ ବା ରେସିଜମ୍ ସେଠି ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। କଳା ଗୋରାର ଭେଦଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେଟା ପ୍ରତିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭିକ୍ଟିମ୍ ଥିଲେ, ତାର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛେ କେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ରାସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିନଥିଲେ, ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍, ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଶୋଷଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଳା ବର୍ଗ କାଟାଗୋରୀରେ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସାକୁ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକିରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ 1915 ମସିହାରେ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ, ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ତ ଆମେ ଅଧୀନ ଥିଲୁ ହିଁ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଏତେ ମଜବୁତ ନଥିଲା ଆମ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ହେଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ବି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଫେରିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ୱିଜଡମ୍କୁ ନେଇକି ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ। ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାପରେ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ଆଧାର କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅହିଂସା, ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ମାନେ ଯାହା ସତ୍ୟ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ।
जदि आहा विरुद्ध किए जाऊँची बा सत्यर आड़े जदि किए क्या प्रति अन्याय करुच्ची शोषण करुच्ची आमे ता हेले ता विरुद्ध स्वर उत्तोलन करबा उचित। तो सत्याग्रह महात्मा गांधी गोटे सामाजिक गोटे राजनैतिक आदर्श कहले चलो। से यही आदर्शटी से साउथ अफ्रिकार भूमि रे प्रथमे ताको प्रयोग ये जो अस्त्रटी को वायु माध्यम को प्रथमे से प्रयोग करथिले। तापरे भारत रे पुणी से सत्याग्रह माध्यम रे से भारतर जनमानस भितर गोटे जागरण आनी। सत्याग्रह जहाँ मु कहली गोटे सत्य प्रति आग्रह जहाँ गोटे मोरल करेज आम भीतर जो नैतिक शक्ति अच्छी तारी उपरे आधारित। तो सत्याग्रह मुख्यतः तीनोटी आधार रही। गोटे है रिजन, गोटे है मोरालिटी आ गोटे है पॉलिटी। रिजन कौन? रिजन सब बड़े जुक्ति को प्रोत्साहन दिए। आम कौन जिनस आखि बुझे ग्रहण करवानी सब बेले आम जुक्ति माध्यम आम चेष्टा करवा जोटा के सत्य जोटा उचित जोटा न्यायपूर्ण सेटा जमती आग को आसू। आउ सत्याग्रह सब बेले नैतिकता बिलीव करे। सो मोरालिटी भी तार गोटे बहुत बड़ आधार। आ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ये आमको से आत्मबल दरकार जो आत्मबल माध्यम आमे ब्रिटिश शासक भली गोटे बहुत शक्तिशाली व्यवस्था को आमे चैलेंज करिपरिबा। तो ये जो माध्यम महात्मा गांधी नहीं स्वाधीनता संग्राम आंदोलन रे सत्याग्रह एटा बहुत साहाय्य कला पूरा संपूर्ण भारतीय भितर से भाव को गोटे समभाव सृष्टि करें। समस्ते सत्याग्रह शक्ति को बुझा को आरंभ कले। आस्ते आस्ते सत्याग्रह जो गरीब माने अच्छी जो शोषित थे जो मैंने अवहेलित थे गोटे अमोघ अस्त्र रूपे परिणत है। सेमती जिते आम अहिंसा विषय कथा कहबा तो अहिंसा को महात्मा गांधी कहते यहाँ हूँ हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल सबुठ उच्च मानर गोटे नैतिकता। तो तार सेमती विभिन्न प्रकार अर्थ रही। आम जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा ताहले इवन आमर पुरातन समाज रे भी अहिंसा को आधार करिकिरी आम समाज आगक जाइए। सेमती धार्मिक दृष्टिकोण देखिले नॉन वायलेंस धर्मर गोटे बहुत बड़ कंपोनेंट बहुत गोटे विशेष उपादान। बिना अहिंसा रे धर्मर प्रचार प्रसार भी असंभव। तेणु गांधीजी अहिंसा को जीवनर मंत्र करथिले ताकु जीवनर गोटे मूल सूत्र बा आईन रूपे लिथिले। आउ से अहिंसा और सत्याग्रह ये दुईटा तांकर बहुत बड़ माध्यम थिला आम भारतर जनमानस चेतना को उद्बुद्ध कराई पारे आउ परिशेष रे स्वाधीनता दबारे। तो ये दुईटा को आम कहीपर जे गांधीजी ए दुईटा अमोघ अस्त्र थिला। एबे हमें जानिबा गांधीजी कौन विचार बोध थिला नेशनलिज्म को लेके आ सेक्युलरिज्म को लेके। नेशनलिज्म कहले गोटे जातीयतावाद को बुझाऊँ, सेक्युलरिज्म कहले धर्मनिरपेक्षवाद को बुझाऊँ। तो प्रथमे जानिबा जातीयताबोध कहले कौन। जातीयतावाद जातीयताबोध तो जातीयतावादर दुई प्रकार पृष्ठभूमि रही दुई प्रकार आधार रही। गोटे हूँ वेस्टर्न मॉडल रे पाश्चात्य दृष्टिकोण रे आमे केमती बुझू आ गोटे भारतीय दृष्टिकोण रे आमे केमती बुझू। वर्तमान आमे भारतीय दृष्टिकोण रे बुझिबा। भारतीय दृष्टिकोण रु जातीयतावाद है सेटा जोटा इनक्लूसिवनेस और नॉन वायलेंस उपरे पर्यवेसित। इनक्लूसिवनेस कौन जहाँ समस्त को नहीं आगू को जाए। इट इनक्लूड्स एवरीवन। तो श्रेणी जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्ते जितेबाला एकाकार होती समस्ते एक स्वर एक गति जितेबाला सामाजिक प्रगति सामिल होती से सोशल इनक्लूजन कही था। तो नेशनलिज्म जातीयतावाद से इनक्लूसिवनेस मूल्यबोध पर प्रतिष्ठित आउ अहिंसार मूल्यबोध पर प्रतिष्ठित। गांधीजी मूलरू ही दुईटी विचारधारा को प्रचार प्रसार करते।
ତା ଛଡ଼ା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଭାଜନକାରୀ ଶକ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁଥିଲା, ଜାତି ନାଁରେ, ଧର୍ମ ନାଁରେ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ର ଜାଗୃତି ହଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦ କହିପାରିବା, ବା ଯୋଉଟାକି ସହିଷ୍ଣୁତା, ଉଦାରତା ବା ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଇ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସମୟର ସମାଜ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜନୀତି ଧର୍ମଟା ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବାଟରେ, ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ବାଟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସବୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବି ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବା ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ବିଚାରଧାରା ଥିଲା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସହଜରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହଭାଗୀ ହେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ହିସାବରେ ସେ ଉଭା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରମୁଖ ଯୋଉ 3ଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେମିତିକି 3ଟା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଟା 1919-21 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା 1930ରୁ 32 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଟା 1942 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସେ ଅହିଂସା ଆଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ, ଇନକ୍ଲୁଜନ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନର କଥା କହୁଛୁ, এই 3ଟି ଶବ୍ଦ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଆମେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ କହିଲେ ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଯୋଉଥିରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବା ବର୍ଗର ବା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜର ମୂଳ ସ୍ରୋତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜାତି, ଧର୍ମ ବା ଯୋଉ ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଉ ହାଇରାର୍କିକାଲ ଅର୍ଡର ଅଛି ବା ବର୍ଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବହୁତ କାଂଶରେ ଦାୟୀ। ସେମାନେ ତଥାକଥିତ ଯୋଉ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଜାତି ନାଁରେ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ନିଜକୁ ଜାହିର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ କାଳକ୍ରମେ ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ କହିଥାଉ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ହେଲା ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଏକ ମଡେଲ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବିକାଶର ଧାରା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ এই ସବୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିଥାଉ, ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥାଉ। ଏକ ସ୍ୱରରେ, ଏକ ତାଳରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ କୁ ଆମ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଭାବିଥାଉ। ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କହେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବାଦ ଦେଇକି ଯାଉ। ତ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଜନ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଦୁଇଟା ଯାକ କୋରିଲେଟେଡ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ କଥା କହୁଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କଥା ବି କହୁଛୁ। ତ ଏହା ଉପରେ କେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଯୋଉ ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ଏହା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅସମାନତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା
विकास करने चाहूँ बा भारतीय मानकर उन्नति करने चाहूँ बा जो लोक मैंने मार्जिनालाइज सेक्शन रही जो मैंने एमती गोटे व्यवस्था द्वारा समाज रु खापछड़ा हो जाए साइडलाइन करदेचु से जब ऊपर को उठेबार आवश्यकता पड़े ताहले हमको से इंक्लूजन उपरे जोर दबा को पड़ेगा सोशल इंक्लूजन जोटा समस्त को लेकिरी जीवार मार्ग तो सेटा केमिति संभव हम महात्मा गांधी कहले सोशल इंक्लूजन संभव हम शिक्षा द्वारा आमे जते शिक्षित होबा ताहले आमे एई आर आवश्यकता बुझी परिबा आउ गोटे बड़ मार्ग है जिते आमे महिला मानक सशक्तिकरण करवा युव गोष्ठी को रोजगार दबा आउ जो मैंने लघु संप्रदाय रहिले तांको आमे सहयोगी बा आमर प्रत्येक काम सहभागिता दबा आउ जाति नारे जो डिस्क्रिमिनेशन रही जो बाछ विचार रही तार जिते परिसमाप्ति करवा ताहले प्रकृत अर्थ रे आमे सोशल इंक्लूजन बा समस्त को लेकिन जो सामाजिक सम्मिश्रण तार लाभ आमे पाई परिबा तो गांधी जी विश्वास करुथिले अर्न और लर्न पॉलिसी रे माने आमे शिक्षा प्राप्त होबा आउ रोजगार क्षम भी होबा आउ जदि आमे शिक्षा ग्रहण करबा मातृभाषा रे शिक्षा ग्रहण कले सेटा बेसी लाभदाय हबो सेमति जहा वुमेन एजुकेशन पे गुरुत्व देथिले आउ केतटी मूल्यबोध जेमति कि मानवीय जो डिग्निटी रही जो स्वाभिमान रही जो समानता रही न्यायिक प्रक्रिया रही ए सबु गुडिक बहुत आवश्यक बोली से मन करथिले आमे बे अंबेडकर को ऊपर आलोचना करबा आमे तांको जानिछु बाबा साहेब अंबेडकर बोली आमे तांको डाकू से 1891 मसिया 14 एप्रिल रे महाराष्ट्र रो अंबेडगांव गोटे गाँव अछि से गाँव रे से गोटे निम्न जाति रो फैमिली परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले से मुंबई रे तांको शिक्षा ग्रहण कले तापर न्यूयॉर्क और लंडन जाइकिरी पुणी उच्च शिक्षा पाइले तापर जितले भारत को फेरिले से नुआ ज्ञान धरिकी फेरिले आउ से चाहिए केमिति भारतीय समाज ये जो असमानता अच्छी जाति को लेकिरी जो वर्ण जो जाति को लेकिन जो अस्पृश्यता अच्छी बा जहाँ भी बाछ विचार बोध अच्छी ताको से केमिति दूर करेंगे से बहुत कंसर्न थिले दलित मानक पई जो माने शोषित थिले जो माने समाज रो मुख्य स्रोत रु दूर रे थिले जो माने अवहेलित थिले आउ से मानक पुनरुद्धार पे से संपूर्ण रूपरे तांको तांकर शक्ति तांकर जीवन को से नियोग करथिले अंबेडकर आमे जानू जे से बहुत गुरुत्व देथिले शिक्षा उपरे इंक्लूजन उपरे आउ जो माने अप्रेस्ड थिले जो मैंने सप्रेस्ड थिले जो मैंने शोषित थिले जो मैंने अवदमित थिले तांकर पुनरुद्धार पई तांकर सशक्तिकरण पई से सब बेले चेष्टा करथिले अंबेडकर चाहूथिले जे एमिति गोटे आईन रे व्यवस्था रहू एमिति गोटे संविधान तैयारी हो जहाँ आम समाज रे गोटे साम्यता आनिबो समानता आनिबो आउ जो जुग जुग धरी जो माने एमती अवहेलितर शिकार होती केमती न्याय प्रदान मिल से भी केमती डिग्निटीर सहित पूरा सम्मान और मर्यादार सहित जीवन बंची पारे तो आम जब अंबेडकर राजनैतिक जीवन को देखा ताकि चारोटी स्टेज रे आमे विभक्त कर से प्रथमे लॉयर थिले आईनजीवी थिले आउ मानवीय अधिकार पे से लड़ी थिले तापरे से दलित मानक पई स्वतंत्र इलेक्टोरेट डिमांड करथिले सो दैट दलित मानक पई गोटे स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था रहिबो से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी प्रतिष्ठा करथिले आउ से जो आमे जानि जे हमर भारतीय संविधान पई जो ड्राफ्टिंग कमिटी गठित हेतला से तार चेयरमैन थिले आ से स्वतंत्र भारतर फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर थिले तो भारतीय संविधान गढ़िबारे अंबेडकर का बहुत बलिष्ठ भूमिका थिला आउ से भारत को गोटे सुंदर भविष्य पाई दिग्दर्शन देथिले अंबेडकर सामाजिक और राजनैतिक दर्शन बा विचारधारा को आमे जदि पर्यवेक्षण करबा ताले आमे जानिबा जे अंबेडकर सबु बेले से जो माने अवहेलित दलित शोषित तांकर पुनरुद्धार पई से चेष्टा करिसंती से केमती समाज रो कुसंस्कार
जो धर्म ना जो कुसंस्कार थिला ताकू से संपूर्ण रूपे मूलपोच करबा पे चेष्टा करछंती से जो डोमिनेंट कास्ट जो माने सब बेले निजर आधिपत्य जाहिर करछंती आ शोषित वर्ग को निजर लक्ष्य पूरण रे व्यवहार करिछंती सेमानंकु भी ठीक रास्ता को आनिया पे संविधान रे आईन रे केमती व्यवस्था हे परिबो तापे चेष्टा करछंती से पर्टिकुलरली जो दलित मानकर पुनरुद्धार पे तांकर मुख्य योगदान रही तो आंबेडकर भी गोटे सेक्ट गोटे संप्रदाय से प्रतिष्ठा करथिले प्रोटेस्टेंट बुद्धिज्म ना रे तार ना से देथिले नवीन नुआ रास्ता ए नुआ रास्ता ही हमको से समानता दिख को आनिबो आ जो दलित माने थिले जो माने निष्पेषित थिले तांको मर्यादार सहित बंचिबा पे तांको सहायक हेबो आ से जानुथिले जे भारतीय समाज रे जाति प्रथा जे पर्यंत तार से पुराना मानसिकता न बाहरी बा से जो डिस्क्रिमिनेटरी बा पक्ष विचार अस्पृश्यतार कबल मुक्त न होइछि से पर्यंत भारतीय समाज रे दलित निष्पेषित न्याय भिक्षा करबा बा न्याय अपेक्षा करबा मूल्यहीन से सब बेले गोटे इगालिटेरियन सोसाइटी बा समानतार समाज गठन करिबार सपक्ष रे थिले जो मार्जिनालाइजेशन और सोशल इनक्लूजन विषय भी आंबेडकर कहते जे सोशल इनक्लूजन सेतबेले संभव हम जितेबले जो मैंने अस्पृश्य दलित से जितेबले निजर अधिकार विषय सचेतन हेबे और समाज मुख्य स्रोत रे सामिल हेबे से तीनोटी मुख्य माध्यम कही गोटे है समस्त को समान अधिकार रहिबो केही बड़ और छोट हेबेनी नाही जाति विशेष रे नाही धर्म विशेष रे आईनगत व्यवस्था रे एभली प्रावधान रहिबो जेमति कि आउ भविष्य रे जतबेले गोटे उच्च जातिर वर्ग नीच जातिर वर्ग को कौनसी प्रकार शोषित करि परिबनी बा ताकू निम्न दृष्टि रे देखि परिबो नहीं सब प्रकार व्यवस्था संवैधानिक स्तर रे प्रशासनिक स्तर रे राजनैतिक स्तर रे एभली आमे व्यवस्था रहिबो जोथिरे कि जो माने मुख्य स्रोत रे शामिल हे पारि नाहंती जो माने दलित निष्पेषित से माने तांकर न्याय पाई परिबे समाजर सब स्तर रे तांकर समान भागीदारी रहि परिबो आंबेडकर सब बेले सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय समानता भातृभाव यहाँ पर गुरुत्व देइचंती आ एथिरे मास मीडिया रो भूमिका बहुत अधिका बोली से कहिचंती जो आमे जाको कहबा मास मीडिया बा से दैट्स अ पावरफुल टूल गोटे शक्तिशाली अस्त्र सामाजिक परिवर्तन आनिबारे सेमती शिक्षा सेमती गोटे बहुत बड़ा एजेंट समाज रे परिवर्तन आनिया पे आउ गोटे माध्यम हैला महिला मानको सशक्तिकरण करबा बा तांको शिक्षित करबा जहां महात्मा गांधी कहले आंबेडकर भी सेथिरे एकमत थिले तो आमे मोटो पे जानिलु गांधी को विषय रे महात्मा गांधी को विषय रे तांकर आइडियोलॉजी तांकर विचारधारा कौन रही गोटे समान समाज सृष्टि करिबारे बा गोटे धर्म निरपेक्ष समाज सृष्टि करिबारे सोशल इनक्लूजन केमिति संभव हे परिबो ए विषय आमे जानिले आज जहाँ हम कहते आम यूनिट 3 को भी आज आम अध्ययन करवा यूनिट 3 जेहेतु टिके दीर्घ अच्छी तेणु आम समय आउ नष्ट न करी यूनिट 3 को जीवा यूनिट 3 विषय आमर वैचारिक स्वरूप जोटा आम भारतीय समाज वैचारिक स्वरूप विषय वर्णना करे अर्थ आम भारतीय समाज रे कौन सब विचारधारा रही जानिबा चेष्टा करिया प्रमुखतः आम जानिबा जातीयतावाद उपरे विविधता उपरे आउ भारत एक सभ्यता एभली एक विचारधारा को लेकर अध्ययन करबा आउ कालक्रमे जो परिवर्तन आम भारतीय समाज रे आसी से परिवर्तन प्रति आमर दृष्टिभंगी केमिति रोची को भली विचारधारा आस्ते आस्ते अभिधान हेची भारतर परिवर्तन को बुझिबा पई
जो आधुनिकता आसी आधुनिकरण होइछि भारतीय समाजर ताकू भी आम बुझा ता सहित आम बुझा जे कौन कौन कारण बा कौन कौन से शक्ति समूह जहाँ भारत में परिवर्तन आनी जहाँ भारत में गोटे परंपरा गोटे दिगरे आधुनिकवाद गोटे दिगरे ए सबको गोटे सम्मिश्रण करें भारतीय समाज को आगक नबारे साहाय्य करछि। सो आमे एबे जानिबा को चेष्टा करिबा अम्बेडकर अच्छा तो आइडियोलॉजिकल इमेज बा जो आमर रही विचारधारार मत विचारधारा बेसिकली आमे जानिबा तांकर बहु जो आमर प्लुरालिज्म अच्छी ताकू जहाँ हमें कहबा जो कौन से प्लुरालिज्म विविधता तो विविधता दृष्टिकोण आम भारत को बुझा चेष्टा करवा तापरे आम बुझा चेष्टा करवा नेशनलिज्म तार सामाजिकता तार जो जातीयता बोध माध्यम भी आम भारत को बुझा चेष्टा करवा। तो बर्तमान आम से जते आइडियोलॉजिकल इमेज आड़ को जाऊे बा जो आम जो विचारधारा को बुझा चेष्टा करवा तो एठी केतेटा जिनस हमको बुझा पड़ो जमती कि आइडियोलॉजी कहले आम कौन बुझू बा जो स्वतंत्र एक विचार कहले आम कौन बुझू विचार सब केमिति सृष्टि होता है विचार से आमर जो मूल्यबोध रही समाज प्रति जो आमर पारिपार्श्विक परिस्थिति जो जाति व्यवस्था अच्छी धर्म व्यवस्था अच्छी जहाँ भी मूल्यबोध सब रही संस्कृति रही से ही विचार सृष्टि हुए बा विचारधारार सृष्टि होता है। यही विचारधारा आमको गोटे स्वतंत्र परिचय दे था स्वतंत्र परिचय आम समाज भितर पाई था ये स्वतंत्र परिचय गोष्ठी मान भितर पाई था आउ ये स्वतंत्र परिचयटा आम आम पारस्परिक संपर्क पाई था। तो विचार बा विचारधारार बहुत गुरुत्व रही जहाँ गोटे समाज को गोटे व्यक्ति को गोटे स्वतंत्र परिचय दे थाए। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया रे जतबेले ब्रिटिशर्स माने छाड़ी चली गले सेतबेले आमे जानिचु जे ए जो विचारधारार समन्वय एटा आम भारतीय समाज को मजबूत करी आगु को नबारे बहुत साहाय्य करछि कहना भारतीय समाज केबे कोनोसी गोटे निर्दिष्ट विचारधारा उपरे पर्यवेसित बा प्रतिष्ठित नुहे एतिरे बहुत प्रकार विचारधारा सम्मिश्रण जेमती कि पाश्चात्य विचारधारा भी रही पारंपरिक विचारधारा भी रही ए सब विचारधारा दुईटी मुख्य जिनिस उपरे गुरुत्व दौची गोटे हेला आमे ए विचारधारा माध्यम समग्र समाज को बुझार चेष्टा करवा आउ कौन करवा ना आपको केमिति परिवर्तन आड़क नहीं पारिबा ताकू मध्य आमे चेष्टा करवा। तो प्रथम आमे जानिबा को चेष्टा करवा प्लुरालिज्म जो विविधता रही से विविधता कौन ताकू प्रथम आमे जानिया को चेष्टा करवा। तो विविधता कहले से को बुझाऊँ जोठी आमे कौनसी गोटे संस्कृति को निम्न दृष्टि न देखी ताको अवहेलित न करी सबु प्रकार विचारधारा सबु प्रकार संस्कृति भाव धर्म सबु प्रकार जो जीवन शैली अच्छी ताको सांगरे नहीं जीवाटा को ही प्लुरालिज्म कहा जाउछि बा विविधतार विचारधारा कहा जाउछि। यह कौनसी एक निर्दिष्ट विचारधारा को उपरे अन्य विचारधारा को तले रखे नहीं यह सबु विचारधारा को सम्मान दिए और सबु विचारधारा को नहीं सांगरे जीवा कथा कही थाए। एथिरे दी प्रकार विचारधारा कथा कहा जाउछि गोटे होछि कल्चरल प्लुरालिज्म आ गोटे हला रिलीजियस प्लुरालिज्म। कल्चरल प्लुरालिज्म कौन जोटा सांस्कृतिक स्तर रे जो आमर विविधता रही आम जानिचु भारतीय संस्कृति
गोटे हेट्रोजिनियस बा गोटे प्लूरल कल्चर जो केते उत्तर रु दक्षिण पूर्व पश्चिम केते प्रकारर जीवन शैली धर्म वर्ण खाद्यपेय भाषा इत्यादि रही तो यहाँ को आम कह कल्चरल प्लुरालिज्म सेमती जिते आम रिलीजियस प्लुरालिज्म कथा कहूँ तो से आम प्रत्येक धर्मर स्वाधीनता विषय कहूँ कि आम सबु धर्म को समान अधिकार दबा कथा कहूँ तो ये रिलीजियस प्लुरालिज्म अर्थ है रिलीजियस धार्मिक विविधतार अर्थ है प्रत्येक धर्म को आम सम्मान सुविधा सुजोग दौचु आउ सांगरे एका सांगरे जीवा कथा कहूचे तो से भारतर गोटे प्रमुख विशेषत्व है धर्मनिरपेक्षता बा सेक्युलरिज्म ए सेक्युलरिज्म टा गोटे वेस्टर्न कन्सेप्ट किंतु आम भारतीय समाज रे तार गोटे निजस्व परिचय रही जदियो यह माने धर्म को पूरा पूरी सामाजिक स्रोतरु अलगा करने सपक्ष किंतु भारतीय समाज दृष्टि धर्मनिरपेक्षता है से जहाँ सबू धर्म को समान अधिकार दिए आ प्रत्येक लोक को से स्वाधीनता दे थाए तार धर्म को लेकर से आग को जापर सेमती आम जिते जातीयतावादर कथा कहूँ तो जातीयतावाद कहले आम तार सेमती बहुत प्रकार कनोटेशन रही विभिन्न पृष्ठभूमि रही अनुसरण करने बेसिकली जातीयतावाद गोटे ऐक्य भाव सृष्टि होचे आम समस्ते एक तो यार दुईटी प्रमुख विभाग अच्छे गोटे है पॉलिटिकल नेशनलिज्म आ गोटे है कल्चरल नेशनलिज्म पॉलिटिकल नेशनलिज्म कोटा जोटा राजनैतिक स्तर में जितेबाला आम समग्र भूखंड जो भारत वर्ष को आम भारत वर्ष भाव अभिहित कर समग्र भूखंड को आम निजर बोली भावी था गोटे सार्वजनीन गोटे गोटे कॉमन गोटे इथोस जितेबाला आम आग को माड़ी चलू एटा आम देश एटा आम संस्कृति आम संविधान तो यहाँ को कहुचे पॉलिटिकल नेशनलिज्म किंतु जिते आम तार सांस्कृतिक जातीयतावाद कहूँ कल्चरल नेशनलिज्म कथा कहूँ से कल्चरल नेशनलिज्म है जे हेटा गोटे प्रांतीय स्तर जातीयतावाद सेटा प्रत्येक प्रांत प्रत्येक अंचल जो संस्कृति अच्छी ताकू आमे एठी सम्मान अधिकार दोचे ताकू आमे उचित सम्मान प्रदर्शन करूचे जातीयता भावधारा रही पॉलिटिकल नेशनलिज्म रे किंतु कल्चरल नेशनलिज्म रे आमे प्रत्येक संस्कृति को मध्य सेतिकी सम्मान दौचु बा सेतिकी आमे मूल्य दे थाउ तो यही जातीयतावाद रे सबुठु बड़ जो बाधक अच्छी सेटा होची आम भीतर जो ना समझ में आम जिते आमर विविधता को बुझी न पारू जेहेतु आम देश विभिन्न संप्रदाय धर्म जाति ना विभक्त होती बहुत विविधता रही तो खूब सहजरे किए गोटे आ भीतर विशृंखला सृष्टि कर किंतु जदि आम भितर से जातीयतावाद स्ट्रंग थिबो ताले सेटा सामयिक रहिबो पुणी तापरे आमे हमर निजस्व मुख्य स्रोत को फेरी जाई परिबा तो ए जो जातीयता बोध जाको आमे कहबा पैन इंडियन जियोपॉलिटिकल यूनिटी जोटा समग्र भारतवर्षर जातीयतावाद को आमे यही जातीयतावाद जे आमे समस्ते भारतीय आमे समस्ते भारत देश ये जो भूखंडर आदिवासी ये जो एको आमे कहबा पॉलिटिकल नेशनलिज्म बा राजनीतिक स्तर रे जो जातीयतावाद ये जातीयतावाद ही हमको मजबूत करिछि ब्रिटिशर्स का विरुद्ध रे लढिया पई बा गोटे एंटी कॉलोनियल परसेप्शन बा से औपनिवेशिकतावाद विरुद्ध रे लढिया पे हमको बल देछि ता सहित हमको जो मु कहली गोटे कल्चरल नेशनलिज्म जोटा कि रीजनल स्तर बा प्रांतीय स्तर रे मध्य गोटे जातीय भावर उद्रेक करिछि जोठी आमे गोटे पटे आम देशर अधिवासी हिसाब से गर्व अनुभव करुचे जातीयतावाद को अनुभव करुचे आउ गोटे पटे निज प्रांत निज अंचल जो स्वकीय संस्कृति रही तार जो निजस्व अभिव्यक्ति रही भाषा रही
तार निजस्व ज्ञान रही संस्कृति रही आमर आमे गर्वित अनुभव करमर परिचयर गोटे अंश विशेष कर भाव में देखिले जातीयतावाद बा नेशनलिज्म को आमे दुईटी पृष्ठभूमि रे आमे देखुथा गोटे आमर पॉलिटिकल नेशनलिज्म जोटा कि पैन इंडियन स्तर रे आ गोटे आमर कल्चरल नेशनलिज्म जोटा प्रांतीय स्तर रे बा आंचलिक स्तर रे तो आमे एठी कोन देखिले जे जेते प्रकार बाधा विपत्ति आसुना कहीं जातीयता बोध बा नेशनलिज्म आमको ए सबुर ऊर्ध्व को नब से भारतीयतार परिचय देके किंतु जितेबाला ब्रिटिशर्स आमको शासन करुले से समय रे किंतु से भली मानसिकता आम भितर नथिला आमे जेहेतु भाग भाग होइकिरिथिलु आहार सुजोग नहीं ब्रिटिशर्स माने आमको शासन करथिले प्रशासनिक सुविधा से माने समग्र भारतर भूखंड को केते गुडाक प्रोविंशियल यूनिट रे विभक्त करथिले तो प्रोविंशियल यूनिट कौन से जमीती कि आमे बर्तमान भारत को आमे देखुछु केतोटी राज्य रे बा केंद्र शासित अंचल विभक्त किंतु यार किछु गोटे लॉजिकल आधार रही किंतु सेतोले ब्रिटिशर्स माने जो आधार रे भारत को भाग भाग माने विभिन्न प्रोविंशियल यूनिट रे विभक्त कले तार कोनोसी भाषागत सांस्कृतिक आधार नथिला जोथि पई प्रांत प्रांत मध्य रे गोटे संघर्ष बा गोटे असंतोषर बन्ही आरंभ होइथिला जमती कि बेंगल प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एभली भाव में गुड़े प्रोविंशियल यूनिट आरंभ होइथिला बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर रे बेंगली माने तो थिले तांको सहित ओडिया थिले असमीज थिले मैथिली थिले भोजपुरी थिले तो एमती आहरी बहुत जनजाति माने भी एथिरे शामिल थिले जते मैं मद्रास प्रेसिडेंसी कथा कहूचे तो मद्रास प्रेसिडेंसी भितर तमिल थिले तेलुगु थिले मलायाली थिले कन्नड़ा थिले आ बॉम्बे प्रेसिडेंसी भितर सेमती मराठी थिले गुजराती थिले कन्नड़ा थिले कोंकणीज थिले किंतु असुविधा कौन रहिला ना ए जो प्रेसिडेंसी तैयारी हितिला एटा कोनोसी अंचलर संस्कृति और भाषा को गुरुत्व न देकरी केवल तांकर प्रशासनिक सुविधा पाई से माने ए सब विभिन्न अंचलर लोकन को गोटे प्रेसिडेंसी भितर रखि देथिले तो से प्रेसिडेंसी जो अंचलटार जो अंचलर टिके अधिक प्राधान्य थिला जो माने मुख्य स्रोत रे ऑलरेडी शामिल हे सारी थिले जेमते बेंगल प्रेसिडेंसी रे बेंगली मानकर जेते प्राधान्य थिला तो एटा प्राय एटा आमे धरि नबा एटा क्वाइट नेचुरल जे जेतले गोटे बेंगल प्रेसिडेंसी भितरे हमर ओडिया सामी इत्यादि जेते अंचल लोक रहिबे से माने निजको असुरक्षित मन करिवे आ से ही हला सबु प्रेसिडेंसी रे जो दी प्रकार रो हमें गोष्ठी देखिलु गोटे जे कि निजको सब बेले जाहिर कला निज संस्कृति निज भाषा रो सब बेले से प्राधान्य देले ताकू आगु को नपा कथा कहिले आ ताकू अन्य मानक ऊपर जोर जबरदस्त लदिबा को भी आरंभ कले आउ गोटे संप्रदाय जे अल्प संख्यक जो माने निज को सेते की प्राधान्य दे पा सेते आगु को से माने जाई पारि नांती से माने कोठी ना कोठी से माने निज को आ भितरे माने हजे देले तो ए जो असुरक्षित भावना सृष्टि हैला ए असुरक्षित भावना रु द्वंद्व आरंभ हैला बा जाको हमें कहिबा गोटे आंचलिक द्वंद्व आंचलिक वाद से आंचलिक वादर प्रभाव एबे भी आम भितर एबे भी अच्छी किंतु तार आरंभ ब्रिटिश शासन समय रु ही हेजी तो आमे देखिले जे ए जो कॉन्फ्लिक्ट आरंभ हैला तो ए कॉन्फ्लिक्ट रो मुख्य कल्प्रिट थिले ब्रिटिशर्स जो माने सब बेले से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रे देश शासन करिसेंती से माने केबे भी हम भारतर आत्मा जो सांस्कृतिक धर जो आधार रही ताकू से केबे भी बुझिबा को चेष्टा करि नाहंती जोथि पई सब बेले हम निज निज भितरे संघर्ष सब बेले रही आसी आमे विविधता विषय जानिले विविधतार को नेकरी जो वैचारिक आधार रही सेमती आमे जानिले जातीयतावाद को लेकिन जो वैचारिक आधार रही सेमती आमे जानिबा इंडियन सिविलाइजेशन बा भारतीय सभ्यता को लेकिन कौन वैचारिक आधार रही
तो एठी आमे देखुचे जे भारतीय सभ्यता पृथ्वीर जेकोसी सभ्यता ठारू पूरापूरी भिन्न। यह आदौ तुलनीय नुहे अन्य कौनसी सभ्यता सांगरे। भारत खाली गोटे देश नुहे, एटा गोटे सभ्यता मध्य कहीं यार गोटे प्राचीन इतिहास रही। आम जाचु गतकाली आम आ विषय अध्ययन करूँ जे वैदिक सभ्यता आउ हरप्पान सभ्यता ए सबुर केमती अवदान रही भारतीय सभ्यता को गढ़वे। आर जो मुख्य आधार भारतीय संविधान जो मुख्य केतोटी जिनस आधार रूपे रही गोटे है यार कंटिन्यूटी बा निरवच्छिन्न प्रक्रिया। भारत समाज भारतीय सभ्यता कथा जिते आम कहूँ यहाँ कौटी अटकी जाए, यहाँ कंटिन्यूअस गोटे तार गोटे नेचुरल फ्लो रे आगु चली आसी। सेमती आ गोटे तार आधार हूँ हेट्रोजेनिटी बा विविधता बा जो विभिन्न किस्मर विभिन्न प्रकार जो आमर जीवन शैली रही हेट्रोजेनिटी सेटा भी आपको गोटे यार गोटे आधार। आ गोटे आधार हूँ एकोमोडेटिंग इथोस, माने आमे समस्त को सांगरे धरिकी गोटे शांतिपूर्ण सहवस्थान जो आमर शक्ति रखू बा सामर्थ्य रखू सेटा गोटे यार गोटे बहुत बड़ा आधार। आ गोटे हूँ तार कंपोजिट कैरेक्टर। कंपोजिट माने समस्त को गोटे तार गोटे संयोगीकरण शक्ति अच्छी भारतीय सभ्यतार। जी शत्रु हो मित्र हो समस्त को लेकिन आगु को जीवार गोटे सामर्थ्य रखी। यही सब जिनस है आमर भारतीय सभ्यतार आधार, जहाँ को आम कहे कंटिन्यूटी हेट्रोजेनिटी एकोमोडेटिंग एथस बा कंपोजिट कैरेक्टर। तेबे आम जानिबा जे भारतीय सभ्यतार सृष्टि केमिति हैला। आम जानिचे प्राय पाखापाखि 5000 वर्ष पूर्व भारतीय सभ्यतार सृष्टि हैला। आम वेद उपनिषद पुराण ये सब जो आम स्क्रिप्चर्स रही से आम भारतीय जीवन मूल्यबोध पाई था, जहाँ आमर वर्तमान भविष्य को आर भितर जो मूल्यबोध जीवन मूल्यबोध रही सब अनुप्राणित करिछि। भारतीय सभ्यता नदीकूल ही आरंभ होइछि। सिंधु नदी कूल गंगा नदी कूल ये सभ्यता आरंभ होइछि। तो जो माने जो महामनीषी माने जो पंडित माने भारत समाज भारतर सभ्यता को बुझा चेष्टा करिसेंती से माने हेले एम.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, बर्नार्ड सी कोहन एमाने सबू भारतीय समाज को से भारतीय सभ्यतार पृष्ठभूमि रे बुझा चेष्टा करिसेंती। से माने भारतर इतिहास को तन्नतन करी खोजिसेंती, भारतर सावललिता को बा तार निरवच्छिन्न प्रक्रिया को बुझिसेंती। आ भारतर जो अमोघ शक्ति रही जो संयोगकारिणी शक्ति रही जहाँ समस्त को लेकिन चले ताकू मध्य बुझा चेष्टा करिसेंती। तो यही प्रोसेस रे आमे जानुछे जे जो भारतीय सभ्यता केते महान आउ केते मात्रा रे आम भारतर दर्शन कला धर्म तार नैतिकता तार सामाजिक राजनैतिक पृष्ठभूमि सर्वोपरि तार आध्यात्मिक जीवन केते अधिका समृद्ध केते भिन्न। पृथ्वीर कौन एक सभ्यता नहीं जहाँ सहित आम भारतीय सभ्यता को तुलना करिपरिबा। भारतीय सभ्यता एक अनन्य तार ऐतिहासिक तार सांस्कृतिक तार नैतिक मूल्यबोधरे से परिपृष्ट। रवींद्रनाथ टैगोर भारत को भारत वर्ष कहते से यहाँ पर गुरुत्व देते वर्तमान युवपीढ़ी केमिति भारतर इतिहास विमुख हो जाउछि। एटा बहुत दुखर विषय परितापर विषय जे आम भारत समाज को जदि बुझा ताले तार इतिहास आम बुझा, कारण इतिहास रे ही आमर मूल जड़ रही। आम जोड़ी हेचु भारतीय इतिहास को लेकिन, तेणु एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण वर्तमान समाज पे जहाँकि भविष्यत जो जे कि भविष्यतर वंशधर सृष्टि करिवो। तेणु सेटा निहाती भविष्यतर वंशधर को गोटे मार्गदर्शन करिवो। तो आमर इतिहास उपरे आमर ज्ञान रहिबा दरकार। एबे आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा सामाजिक परिवर्तन आ भारत रे आधुनिकीकरण। परिवर्तन कथा जिते आम कहूँ आम जाचु परिवर्तन गोटे अपरिवर्तनीय नियम। प्रत्येक समाज पाई
परिवर्तन अवश्य भावी परिवर्तन निश्चय आसीबो परिवर्तन को आम अटकई पारिबा नहीं सेमिति भारतीय समाज कथा जिते कहवा भारतीय समाज तार जिते रिच कल्चरल ट्रेडिशन बा अति समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर तार थाउना कहीं किंतु यह मध्य परिवर्तन को स्वीकार करिछि बा परिवर्तित समाज को जाइछि तो यही परिप्रेक्षी रे आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा जो आधुनिक भारत समाज जो आधुनिकीकरण हेछि से आधुनिकीकरण भारतीय समाज को दिग को नहीं योगेंद्र सिंह आम समस्ते जानिछे जने विख्यात समाज विज्ञानी भारतर से गोटे बही लिखिथिले जार ना होछि सोशल चेंज इन इंडिया क्राइसिस एंड रेजिलियंस 1993 मसीह पब्लिश होइथिला एई बही रे से दुई प्रकार सामाजिक परिवर्तन विषय कहउचंती गोटे हेला सामाजिक संरचना रे परिवर्तन आउ गोटे हेला भारतीय जनमानसर चेतना रे परिवर्तन तो जितेबाला आम सामाजिक परिवर्तन कथा कहूचे तो आमको दीटा जिनस पर गुरुत्व दबा गोटे हेला भारतीय जो सामाजिक पृष्ठभूमि रही जो सामाजिक संरचना व्यवस्था रही तार जो अनुष्ठान तार जो संस्कृति तार जहाँ भी व्यवस्था रही से व्यवस्था रे कौन परिवर्तन आसी आ गोटे है मनीष जो भारतीय मानकर मानसिकता रे कौन परिवर्तन आसर चेतना रे कौन परिवर्तन आसी ए दुई प्रकार परिवर्तन उपरे वैसिंग गुरुत्व देइछन्ते से कहछन्ते जे भारतीय समाज को जदि आमे चारोटी शब्द रे बुझिबा को चेष्टा करबा तांको भाषा रे चारोटी शब्द हैला होलिसिम हायरार्की कंटिन्यूटी एंड ट्रांसेंडेंस होलिसिम हायरार्की कंटिन्यूटी एंड ट्रांसेंडेंस होलिसिम कहले कोन बुझिबा जे भारतीय समाजर सामग्रिकता को बुझौछि भारतीय समाज गोटे निर्दिष्ट धर्म बा वर्गर लोकंक पई नाही एटा समग्र भारत वर्ष तो यहाँ गोटे सामग्रिक बुझे मैंने जीवन गोटे निर्दिष्ट जगार अटकी जाइए यहाँ आर विभिन्न विभाग रही सब विभाग को सांगरे धरिकी चली तो यहाँ है सामग्रिकता जिते आम हायरार्की कथा कहूँ बा सामाजिक वर्गीकरण कथा कहूँ यहाँ भारतीय समाजर आउ गोटे लक्षण जे आम समाज बहुत श्रेणी रे विभक्त बहुत जाति उपजाति रे विभक्त एटा को हम स्वीकार करिया को पड़िबो जे गोटे सामाजिक वर्गीकरण व्यवस्था रही जोथि पे हम समाज भारतीय समाज रे असमानता रही विषमता मध्य रही जोथि पाई भारतीय दार्शनिक माने चिंतानायक माने दिग्दर्शन देइछन्ते केमिति हम विषमता वा असमानता रो ऊर्ध्वको आसीबा वैसिंग आ गोटे कथा कहते कंटिन्यूटी माने भारतीय समाज गोटे जहाँ भी हो जाओ से निरवच्छिन्न आगु को माड़ी चली कोटे अटकी जाए नहीं सेटा गोटे तार प्रमुख लक्षण आ गोटे है ट्रांसेंडेंस बा अलौकिकता आम जो आध्यात्मिक भित्तिभूमि अच्छी जो धार्मिक भावना अच्छी ये सब मध्य भारतीय समाज को गोटे स्वतंत्र परिचय दौची तो परिवर्तित पृष्ठभूमि रे वैसिंग दीटा मुख्य परिवर्तन विषय कहते गोटे लिटिल ट्रेडिशन चेंज इन द लिटिल ट्रेडिशन एंड चेंज इन द ग्रेट ट्रेडिशन ये जो कंसेप्ट लिटिल ट्रेडिशंस बा ग्रेट ट्रेडिशंस एटा एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेडक्लिफ कर शब्द से एक कंसेप्ट से देथिले तो एटी श्रीनिवास कहया को चाहूछंती जे जेतबेले परिवर्तन आसुची से लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन रे आस्ते आस्ते एमती नहीं हठात गोटे ओवरनाइट चेंज हो जाउची कालक्रमे परिवर्तनटी आसुची आ गोटे बहुत बड़ एग्जांपल हैला संस्कृताइजेशन जयमेन श्रीनिवास संस्कृताइजेशन रो कथा कहि जाइछंती जेतबेले निम्न जातिर लोक मैंने उच्च जाति लोकंकर जीवन शैली को अनुसरण करी जो भारतीय वर्गीकरण व्यवस्था रे ऊपर को निजर सामाजिक परिस्थिति को ऊपर को उठेबा को चेष्टा करिसंती समाज रे तांकर निजस्व स्थिति को आगु को नबा को चेष्टा करछंती ए सेही भली गोटे परिवर्तन जो जहाँ आम देखुचे जे ए जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस रे
परंपरा को धरिकी आगक जाइए। तो मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण आउ परंपरावाद ए दुईटा के अलग है भारतीय समाज रे। आमे भारतीय समाज परिवर्तन जदि बुझा चेष्टा करबा खाली आधुनिक पृष्ठभूमि भूमि रे बा खाली परंपरार पृष्ठभूमि रे आमे बुझी परिबा नहीं। आमे ए दुईटार सम्मिश्रण रे ही आमे भारतीय समाजर परिवर्तन को बुझी परिबा। तो भारतीय समाजर ए जो परिवर्तन एटा गोटे कालक्रमे ए परिवर्तनटा आसीची, किंतु जो मॉडर्नाइजेशन कथा कहूचे पूरापूरी पाश्चात्य चिंताधारा रे एथिपाई आमे केबे भी खाली पाश्चात्यकरण बा आधुनिकीकरण को दायी करि परिबानी। जहाँ भी परिवर्तन आसीची आमर किछिटा आमर निजर सांस्कृतिक घटना बळीरु आम निज देश मध्यरु बा निजर अंचल मध्यरु कारण गुड़िक आसीची ए परिवर्तन पाई। सेते वाइसिंग कहउचंती जे भारतीय समाज जो परिवर्तन कथा आमे कहउछु एटा सुई जेनेरिस बा हमरी भितर ही एटा सृष्ट। ता सहित जो बाह्य कारण सब रही वेस्टर्नाइजेशन बा संस्कृताइजेशन यह मध्य समाज रे परिवर्तन आनिया को चेष्टा करिछि। तो वाइसिंग ए परिप्रेक्षी रे से कहउचंती दुईटी बलिष्ठ कारण जाको से ना दउचंती हेट्रोजेनेटिक बा एक्सोजीनियस कॉज आ गोटे हैला ऑर्थोजेनेटिक बा एंडोजीनियस कॉज और सोर्स बा ए दुईटा हैला उच्च। गोटे प्रथमटी उच्च हैला जोटा आम समाजर बाहर आसुची और सेति से तार ना दउचंती एक्सोजीनियस बा आमर देशर बाहर जो शक्ति राज्य अच्छी जहाँ आम समाज रे परिवर्तन आणुची जेमति कि हमर मॉडर्नाइजेशन कथा कहि परिबा वेस्टर्नाइजेशन कथा कहि परिबा से ए सब गोटे गोटे उच्च जो सामाजिक परिवर्तन आसी सब बाह्य कारण। जो अंत कारण रही जोटा आम समाज भितर आसी सेटा जेमति गोटे प्रमुख उदाहरण हैला सांस्कृताइजेशन मेनस्ट्रीम जो सांस्कृताइजेशन कथा कहले बा इस्लामाइजेशन कथा कहबा सेतरो जो मुगल शासन काल जो परिवर्तन आसिला ए सब आम भारतीय समाज को बहुत माने परिवर्तन आड़को नेछि। तो आम देखुचे भारतीय समाज रे जो दुईटा प्रमुख पृष्ठभूमि रही गोटे सामाजिक पृष्ठभूमि रही गोटे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही। ए दुईटा जाक पृष्ठभूमि रे आम देखुचे सामाजिक परिवर्तन आसी। जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रे आम जो कहले रेडफिल्ड कॉन्सेप्ट लिटिल ट्रेडिशन बा ग्रेट ट्रेडिशंस। लिटिल ट्रेडिशन है कौन गोटे प्रांतीय परंपरा गोटे निर्दिष्ट अंचल रे आमे जो परंपरा जो संस्कृति रखी था सेटा पूरा पूरी निजस्व ता मध्य परिवर्तन आसी। आ ग्रेट ट्रेडिशन है जोटा पैन इंडियन कॉन्टेक्स्ट समग्र भारत रे जोटा कि सर्व आदृत सार्वजनीन जोटा आम समस्ते भारतीय हिसाब से जो संस्कृति को गर्व रे परिचय दो से ग्रेट ट्रेडिशन मध्य हमर परिवर्तन आसी। आ कोटी परिवर्तन आसी एटा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रे। सामाजिक पृष्ठभूमि रे वाइसिंग कहउचंती तार दुईटा भूमि रही गोटे हैला माइक्रोस्ट्रक्चर और मैक्रोस्ट्रक्चर। मैक्रोस्ट्रक्चर सेमती गोटे एक विशाल सामाजिक पृष्ठभूमि जो आम राजनीति व्यवस्था अर्थनैतिक व्यवस्था आईनगत व्यवस्था इत्यादि मैक्रोस्ट्रक्चर कथा कहबा। माइक्रोस्ट्रक्चर कहले जोटा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप व्यक्तिगत स्तर रे हमर विचारगत स्तर रे हमर बिलीफ्स जो रही विश्वास कर्मकांड नीति इत्यादि व्यक्तिगत स्तर रे जहाँ रही से परिवर्तन कथा कहते। तो बेसिकली आम जहाँ जानूचे भारतीय समाज रे जहाँ परिवर्तन विषय आम आलोचना कले यह गोटे प्रकार शिफ्ट आम देखुचे से शिफ्ट ट्रेडिशनलाइजेशन रु मॉडर्नाइजेशन हमको नहीं परंपरावादी समाज रु गोटे आधुनिकीकरण समाज आड़क हमको नहीं। ट्रेडिशनलाइजेशन बा परंपरावादी समाज कथा जिते आम कहूँ तो से
जो तार इंडिजिनियस फैक्टर बा जो आम निजर जो निज अंचल निज प्रांतर जो फैक्टर्स वैसे कहते ऑर्थोजेनेटिक कजेस इंडिजिनियस कजेस आमर निजर जो कारण गुड़िक रही दायी सेमती जितेबाला आम मॉडर्नाइजेशन कथा कहे जोटा मैक्रो स्ट्रक्चर हो माइक्रो स्ट्रक्चर हो जो आधुनिकीकरण कथा कहे एपाई जो कारण गुड़िक दायी से सब बहिर्कारण बहिर्कारण आमर देश बाहर आम संस्कृतिर बाहर से कारण गुड़िक आसी जोटा कि आम वेस्टर्नाइजेशन कथा कहचे मॉडर्नाइजेशन कथा कहचे तो वाइसिंग एपरी भाव से यार वर्णना करिसेंती भारतीय समाज रे तार समाज भारतीय समाज रो जो सामाजिक संरचना रे केमती परिवर्तन आसीची तार टेक्नोलॉजी रे सोशल मोबिलिटी रे बा सामाजिक गतिशीलता रे आ तार जो सेक्युलर इंस्टीट्यूशन अछि बा धर्म निरपेक्ष जो अनुष्ठान सब रहिची सेथिरे कोबरी भाबे परिवर्तन आसीची तापरे आलोचना करछथि सो आमे मोटामोटी भाबे देखिबा जे परिवर्तन जो वाइसिंग जो सामाजिक परिवर्तन कथा कहते भारतीय समाज रे तार से दुईटी प्रमुख दिग गोटे सामाजिक संरचना रे कौन परिवर्तन आसी कौन बहिर्कारण रही अंत कारण कौन रही इंडिजिनियस फैक्टर एक्सोजिनियस फैक्टर कौन रही सेमती से कहते इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कथा बा जो आमर भारतीय जनमानस चेतना रे जो परिवर्तन आसी से कोभली भाव में परिवर्तन आसी तो यही चेतनागत स्तर रे वैचारिक स्तर रे वैसिंग कहते जे दीटा प्रमुख अप्रोच काम करुचे गोटे डायलेक्टिकल अप्रोच आ गोटे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच डायलेक्टिकल अप्रोच जोटा कि मार्क्सिस्ट आइडिया रु आसुची जोटा कि गोटे कौन से एक जिनस को आखि बुझी ग्रहण करे ना एटा विश्वास करे जे संघर्ष रे ही विजय अच्छी सो डायलेक्टिकल अप्रोच माध्यम रे जो आमे सामाजिक परिवर्तन आनीचु सेटा विश्वास करूची जे आमे केमती गोटे परंपरा को भांगी देकरी आमे गोटे नूतन परंपरा रो सृष्टि आडको आमे जाई परिबा से डायलेक्टिकल अप्रोच से मार्क्सिस्ट चिंताधारा आधार रे परिवर्तन कथा कहूँ सेमती जदि आम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच कथा कहबा ताहले एहा गोटे साबलील निरवच्छिन्न विवर्तनवादर कथा कहूँ जे समाज केमिति गोटे निरवच्छिन्न प्रक्रिया गोटे भारतीय समाज गोटे निरवच्छिन्न प्रक्रिया हिसाब से आगक जाइए आस्ते आस्ते सब जिनस जोड़ी हो जाइए किसी आम बाद देचु आमर सामग्रिक सामाजिक जीवन रु कि नुआ जिनस जोड़ी हो जाइए तो मोटपे देखिले जो आदिम मानव सभ्यता आरंभ करके वर्तमान आधुनिक मानव सभ्यता पर्यंत गोटे इवोल्यूशनरी प्रोसेस रे आम भारतीय समाजर परिवर्तन को बुझा चेष्टा कर गोटे वैसिंग कहते गोटे यूनिलिनियर प्रोसेस बा गोटे एक सरल रेखार आम बुझा चेष्टा करवा सबुठ बड़ कथा है भारतीय समाज को बुझा तार दुईटी जिनस को आमको बुझा पड़ो गोटे तार मॉडर्नाइजेशन आ गोटे ट्रेडिशन जहाँ कहली भारतीय आधुनिकीकरण तार परंपरा को बाद देकर नुहे ता परंपरा को सांगरे धरिकी आसी एटा ही यार विशेषत्व आधुनिकीकरण सब बेले भारत पई गोटे विशेष महत्व रखे ये आधुनिकीकरण पाश्चात्य पृष्ठभूमि रे यार माने अलगा किंतु जदि आम भारतीय समाज पृष्ठभूमि रे ताकू देखिबा ताहले आकू आम केबे भारतीय समाज रु भिन्न करिकरी आम आ विषय चिंता करि परिबानी मैकिम मैरियट वेरी वेल नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट से कहले दिस इज कॉल्ड इंडियनाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी बा आधुनिकीकरण रो भारतीयकरण तो जिते आम आधुनिकीकरण कथा कहूचे जमी वैसिंग कहते यार दुईटी प्रमुख पृष्ठभूमि रही मैक्रो स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर मैक्रो स्ट्रक्चर है जोटा कि भारतर ब्यूरोक्रेसी इंडस्ट्री मार्केट पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप ये सब को बुझाऊँ माइक्रो स्ट्रक्चर कहले फैमिली कास्ट सबकास्ट किनशिप ये सब को बुझाऊँ जो आम परिवर्तन को परिवर्तन को आगे देखुचे तो तार बहुत थियोरेटिकल ट्रेडिशन भी रही जोटा कि वैसिंग
ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏହାର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲୋସଫି ବା ଆମର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଧାକମଲ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଡିପି ମୁଖାର୍ଜୀ, ଏକେ ଶରଣ, ଏହିପରି ବହୁତ ମହାମନୀଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସେ ଦାର୍ଶନିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏତେ ଉଚ୍ଚମାନର ହେଇବି ଏହା ବିଶେଷ ଆଦୃତ ନେଇପାରିନି, କାହିଁକିନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯୋଉ ଏମ୍ପିରିକାଲ ନଲେଜ କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ କୋଉଠି ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ସେମିତି ୱାଇସିଂ ଗୋଟେ କଲଚରୋଲଜିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତାଇଜେସନ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟରେ ପାଇଥାଉ। ସେମିତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଥିଓରିଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ସଂରଚନାରେ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ଅଛି, ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ୍ସିଆନ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆସିଛି। ସେଟା ବି ସେମିତି ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସେ ଗୋଟେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ ମୋଟ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ଏବେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ତ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବୈଚାରିକ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ଭାରତର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଆମେ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଜାତୀୟତାବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଜାତୀୟତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଇମେଜ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ମୂଲ୍ୟ କଣ, କେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଜାତୀୟତାବାଦର କଣ ମାନେ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ପ୍ଲୁରାଲିଜମ ବିବିଧତାବାଦକୁ ବୁଝିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ବା ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ତା ଛଡା ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ତାର ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତାର ଯାହାବି ଆଧାର ରହିଛି ସେଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନରେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କିପରି ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ। ଆଧୁନିକୀକରଣଟା କେବେ ବି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏହାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଏହା ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉଭୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଯେତେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ କଣ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।